Friends, in the previous lecture we have learned about how to represent a root number on the number line. We have solved the example of how to locate root 3 on a number line. Okay. So in this lecture we are going to little bit ahead to that. Today we would like to discuss types of decimal expansion. Okay, I would like to teach you this topic with the example also. The first type is terminating. But what is terminating? Terminating का मतलब होता है कि that gets end, जिसका अंत हो जाता है, उसको बोलते हैं हम terminating. Let me show you one example. Suppose I do division of, suppose I have a number 30 divided by 4. This is a rational number. Why this is a rational number? Because I can show this number in the form of p divided by q, क्योंकि उसका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर, इसलिए हमको उसको रेशनल नंबर कहते हैं. अगर ऐसा नहीं होता तो हम उसको इरेशनल नंबर कहते हैं. अगर किसी भी नंबर को हम p डिवाइड बाय q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो हम उसको इरेशनल नंबर कहते हैं. बट हियर आई हैव रिटर्न द नंबर 30 डिवाइड बाय 4. ओके, आई डू डिवीजन राइट नाउ. 30 डिवाइड बाय 4. Everybody can do this division. 4 7s are 28. 30 minus 28, it will become 2. I will put point here. It will come 0 here. 4 5s are 20. 0 0. So your answer is 7.5. Your answer is 7.5. You will notice here whenever your remainder is 0. जब भी आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आपका सम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. राइट, दैट मीन्स after point in 1 or 2 step your example gets completed. तो यहाँ पर पॉइंट के बाद हमें एक ही डिजिट मिला. इसका मतलब कि आपके पॉइंट यहाँ पर एंड हो जा रहे हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन. सपोज कि आई गेव यू वन मोर एग्जांपल. सपोज आई हैव सपोज 16 और सपोज 18 डिवाइड बाय 6. 6 2s are, suppose okay I am giving, suppose I am putting here 8. 8 2s are 16. Okay, 8 minus 6 2. 1 minus 1 0. I am putting point here. It will come 0 here. 8 2s are 16. 4 will come here. Again 0. 0 will come here. 8 5s are 40. So again your remainder is 0. Again your remainder is 0 and whenever your remainder is 0 तो आपके पॉइंट के बाद डेसिमल आना बंद हो जाता है. दैट मीन्स इट गेट्स कंप्लीटेड. इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन. तो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन के और एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूँ टर्मिनेटिंग पॉइंट के लिखना चाहूँ तो वो एग्जांपल कौन से रहेंगे? यही हमारा एग्जांपल है. 7.5, 2.25 और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं. सपोज कि 4.3, 9.05, 8.935. दिस इज ऑल एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनेटिंग पॉइंट. टर्मिनेटिंग पॉइंट का एग्जांपल होता है जिसके बाद पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट आना एक टाइम के बाद बंद हो जाता है. तो दिस इज ऑल द एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनेटिंग पॉइंट. ओके, when I will discuss the second type, that would be non terminating. तो आपको पता चल जाएगा कि exact what is the meaning of terminating. Okay, one more thing. Can I write this example in the form of p divided by q? क्या मैं इसको p divided by q के फॉर्म में लिख सकता हूँ? 7.5, yes. 75 divided by 10. 2.25, it would become 225 divided by 100 because दो पॉइंट के बाद 2 digit है. I have 2 digit after point, so I will put 100 here. Here also there is only 1 digit after point, so it will become 43 divided by 10. Here 9.05. You can see here there is only 2 digit after point, so it will become 905 divided by 100. But here in this example 8.935, here you can see here there is a okay, in this example you can see there is a total 3 digit, 1 2 and 3 digit. So how will I convert these examples
इन द रेशनल नंबर। मैं इसको रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करूंगा? आई विल राइट द वैल्यू एज इट इज 8395. I will remove point from here and you can see here there is a 3 digit after point, so I will put 1000. It's very simple. अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो you will put 10 here and remove point from here. If you have 2 digit after point, you will put 100 and remove point from here. If you have only, this is the same type of example. There is only 1 digit after point. Here also 1 digit after point. तो यहाँ पर से आप point remove कर दोगे. You will put 10 in the denominator. यहाँ पर point here you have a 3 digit after this point. So you will remove point from here and you will put 1000 from in the denominator. तो यहाँ पर भी p divided by q, p divided by q, p divided by q के फॉर्म में आएगा. It means in this all these examples have numerator and denominator. Numerator and denominator, numerator and denominator. So whenever you have a numerator and denominator, all these example will become of rational number. सभी के सभी rational number बन जाते हैं. तो टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन के एग्जाम्पल्स है ये सब 7.5, 2.25, 4.3, 9.05. क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद पॉइंट के बाद डिजिट आने बंद हो जाता है, इट गेट्स एंड, इसलिए उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग. सपोज आई एम राइटिंग हियर सेकंड टाइप, दैट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग. Okay, now what is non-terminating? I will write an example as I have written here. मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा था उसी तरह से मैं आपको समझाऊंगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल एक्सपेंशन किसे कहते हैं. हालांकि आप बेस्ड ऑन द वर्ड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि हियर इट वाज टर्मिनेटिंग, इट मीन्स द डिजिट कम्स गेट्स टू एंड आफ्टर सर्टन टाइम. हियर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपके पॉइंट रुकने, पॉइंट के बाद डिजिट आने बंद नहीं होंगे, डिजिट आते ही चले जाएंगे. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सपोज आई डिवाइड 10 डिवाइड बाय 3. ओके, व्हाट वुड बी द डिवीजन ऑफ 10 डिवाइड बाय 3. 3 3 जा 9, 10 minus 9 1. I will put point here, it will become 0 here, it will become 10. 3 3 जा 9, again 1 will come here, again I will put point. 3 3 za 9, again 1, again 0, 3 3 za 9, and it will come, this process will come ahead and ahead, it will never comes to end. इसका कभी अंत होगा ही नहीं. 3.3333 आते ही चले जाएंगे. तो you can see easily differentiate these two terms, terminating and non terminating. यहाँ पर क्या हो जाता था कि पॉइंट के बाद डिजिट आने बंद हो जाते थे. क्यों? यू गेट्स अ रिमाइंडर 0. यहाँ पर आपको 0 रिमाइंडर मिलेगा ही नहीं. अगर आपको 0 रिमाइंडर नहीं मिलता है, दैट मीन्स योर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग. इफ योर रिमाइंडर इज 0, योर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग. अगर आपको 0 रिमाइंडर नहीं मिलता है तो योर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग. सपोज कि यहाँ पर 3.333 है, इट विल नेवर कम टू एंड, इसका कभी भी अंत नहीं होगा. ओके, आई विल गिव यू एग्जांपल एज आई हैव रिटन हियर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग. हियर वन मोर थिंग यू विल नोटिस हियर. आप एक बात ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर 3.33333 जो है, इसमें वनी टाइप के ओनली द नंबर दैट इज बीइंग रिपीटेड, इट इज ओनली नंबर 3. जो नंबर रिपीट हो रहा है वो एक ही नंबर है. ओके, तो इसको हम और भी कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी कर सकते हैं, एंड रिकरिंग. यू कैन से रिकरिंग एज वेल एज रिपीटिंग. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग इसीलिए है क्योंकि 0 रिमाइंडर नहीं है और पॉइंट के बाद डिजिट आते ही चले जाते हैं. और रिपीटिंग इसलिए क्योंकि सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है. सपोज कि यहाँ पर मैं एग्जांपल्स लिखूँ, कुछ एग्जांपल्स. सपोज कि मैं पहला एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ पर
3.33333 एंड सो ऑन, इट विल नेवर कम टू इट। तो इस तरह के एग्जांपल्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। ओके, तो इस तरह के एग्जांपल है। सपोज आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल। सपोज आई हैव 9.28, सपोज आई हैव 9.77777 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी यू कैन सी हियर दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि एंड नहीं हो रहा है एंड सेम नंबर इज बीइंग रिपीटेड अगेन एंड इट नेवर कम्स टू एंड। तो इस तरह के एग्जांपल से उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, वन मोर थिंग हियर 3.3333 है, बहुत बार आ रहा है। क्या मैं इसको शॉर्टकट वे से लिख सकता हूँ? तो मैथमेटिक्स में इसको शॉर्ट में लिखने का एक आइडिया है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 3.3 लिखूंगा, उसके बाद पॉइंट लिखूंगा, आफ्टर पॉइंट आई विल सी कि कौन सा डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो कौन सा नंबर है? 3 है। तो मैं उसको वन टाइम में लिखूंगा, उसके ऊपर मैं बार कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ वेन एवर यू हैव अ बार ऑन एनी डिजिट इट शोस अस, वो हमको बताता है कि ये नंबर ही रिपीट हो रहा है। इसको मैं इन अ शॉर्टकट वे ऐसे लिख सकता हूं 9.7 डैश। ओके, वन मोर एग्जांपल। सपोज यू टेल मी व्हाट वुड बी द हाउ विल यू राइट इन दिस शॉर्टकट वे 835.666 एंड सो ऑन। आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको लिखोगे 835 विल कम एज इट इज, 835 विल कम एज इट इज एंड कौन सा पॉइंट रिपीट हो रहा है? पॉइंट के बाद ही देखना है हमें। तो कौन सा डिजिट नंबर रिपीट हो रहा है? 6666। तो आपको क्या कर देना, एक बार 6 लिखना है, उसके ऊपर आपको बार बना देना है। वेन एवर यू हैव अ बार ऑन एनी डिजिट, तो वो समझ जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। बार बार 6666 ऐसा लिखने की जरूरत हमें नहीं है। इसको हम डायरेक्टली इन अ शॉर्टकट वे वी कैन पुट अ बार on that digit. Suppose one more example is, it will be little different from this. Suppose I have a 12.435। कई बार क्या होगा कि पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा, वो रिपीट नहीं होगा, बट आफ्टर दिस डिजिट हियर यू कैन सी 35 is being repeated. So how will you write these examples in a shortcut way? Your answer would be you will write 12 as it is, point is उसके बाद आपको देखना है 435 लिख देना है, 435। लेकिन आपको ध्यान से देखना है, here many children makes mistake is कि वो देखते नहीं कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। यू कैन सी हियर ओनली 35 इज बीइंग रिपीटेड बट 4 इज नॉट बीइंग रिपीटेड। 4 रिपीट नहीं हो रहा है, तो आपको 4 के ऊपर बार नहीं बनाना है, आपको केवल 35 के ऊपर ही बार बनाना है। ये चीज खास हमें ध्यान में रखनी है। इफ यू हैव अ 4 दैट इज नॉट बीइंग रिपीटेड, यू विल नॉट पुट अ बार ऑन द नंबर 4। आप केवल 35 नंबर के ऊपर ही बार बनाओगे। ओके, वन मोर थिंग इज आई हैव, पहले मैंने आपको बताया था कि आई कैन राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ P एंड P डिवाइड बाय Q। तो ये सभी के सभी नंबर रेशनल बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ we can prove that whenever we have a terminating expansion and we convert those number into rational number in the form of P divided by Q, तो ये सारे के सारे नंबर हमारे रेशनल है। क्यों? क्योंकि हम उसको P डिवाइड बाय Q के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हम ये जो नंबर है 3.3333 इसको हम P डिवाइड बाय Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे, देखते हैं। Suppose I have a 3.3333. Suppose I will have a 3.3. I can write the answer 30 divided by 10. If I have 33, so I can write 3 again 3 and 0. If I have one more 3, I can write again 3 again 0. If I have one more 3, again I write 1 3 and 0. But
आई डोंट नो हाउ मेनी 3 कम्स आफ्टर दिस पॉइंट, मुझे पता ही नहीं कि कितनी बार 3 आएंगे, तो मैं कितनी बार 3 लगूँ और कितनी बार 0 लगूँ, ये मुझे पता नहीं चलेगा। तो इन द यू जस्ट नोट डाउन दिस थिंग। अब इन द सेकंड टाइम आई विल डिस्कस हाउ टू राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ P डिवाइड बाय Q। जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग एक्सपेंशन है उसको हम P डिवाइड बाय Q के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसके बाद आई विल डिस्कस द थर्ड टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद में थर्ड जो हमारा तीसरा टाइप का एक्सपेंशन है, फर्स्ट है टर्मिनेटिंग। मैं आपको वन मोर थिंग, आई एम जस्ट रिपीटिंग द थिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड। टर्मिनेटिंग में एक पॉइंट के बाद 1 या 2 या 3 डिजिट के आने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। इफ यू विल नॉट गेट रिमाइंडर 0 तो आपके पॉइंट के बाद डिजिट आने शुरू ही रहते, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि एंड नहीं हो रहा है और हमारे जो नंबर है वो सेम रिपीटेड हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं रिकरिंग या रिपीटिंग। ओके, यू जस्ट नोट डाउन दिस थिंग ओनली इन द after that I will show you how to show all these examples in the form of P divided by Q. Okay, just note down this thing. Okay, so this is our first example. Show 0.6 bar in the form of P divided by Q. हमें 0.6 बार जो है उसको हम P divided by Q के फॉर्म में हमें लिखना है। अभी सपोज आई वुड हैव अ 0.6, अगर मेरे पास केवल 0.6 होता तो मैं उसको इजीली 6 डिवाइड बाई 10 कर लेता और P डिवाइड बाई Q के फॉर्म में आ जाते। लेकिन मेरे पास क्या है 0.6 बार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेरे पास कौन सा नंबर है, मेरे पास नंबर है 0.66, मेरे पास नंबर है 0.6 बार। इसका मतलब है कि मेरे पास नंबर है 0.6666 एंड सो ऑन। इसका कोई एंड नहीं है, ये बहुत बार आएगा। इसका मतलब ये हुआ, हमने यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग एक्सपेंशन जब मैंने समझाया तब मैंने आपको बताया कि whenever you have a bar on any digit that digit will be repeated again and again and again and again. ओके, तो हमें ये नंबर को P डिवाइड बाय Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हाउ शो करना है, हाउ, चलो देखते हैं। सपोज आई एज्यूम x is equal to 0.6 बार। मैं 0.6 बार क्यों x एज्यूम, सपोज अभी मैं एग्जाम कर रहा था, देखते आगे क्या प्रोसेस होती है। तो कैन आई राइट x is equal to 0.66666 and so on, because same number will be repeated again and again. Now in the next step I am going to multiply both side with number 10। मैं अगर इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा with the same number, we can multiply with any number to the left side and the right side, but the main important thing is कि हम उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं अगर लेफ्ट साइड को 10 से करूं तो राइट साइड को भी मुझे 10 से ही करने पड़ेंगे। अगर मैं लेफ्ट साइड को 100 से करूं तो राइट साइड को मैं भी 100 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। तो सपोज आई मल्टीप्लाई दिस x विथ 10, मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं और इस नंबर को भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं। So okay, I have multiplied with number 10 both side। मैंने लेफ्ट साइड में भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है और मैंने राइट साइड को भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है। So what would be our next step? Our next step would be 10 multiply x, so it will become 10x, and 10 multiplied by 0.66666। तो इसका आंसर क्या आएगा? Whenever you have a 10 multiplied with any decimal, what you will do is, सपोज कि मेरे पास 10 है तो ये जो पॉइंट है वो एक डिजिट के बाद यहां चला जाएगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा, ये पॉइंट यहां से मैं यहां ले लेता हूं 0.66666। सपोज आई हैव अ 10 मल्टीप्लाइड बाय 4.321। अगर मुझे 10 से 4.321 को मल्टीप्लाई करना है तो मेरा आंसर बनेगा 4, यहां पर पॉइंट है, देखिए पॉइंट किसके बीच में है, द पॉइंट इज बिटवीन 4 and 3। सो व्हाट आई विल डू, आई विल
यहाँ से पॉइंट में यहाँ ले लूंगा, यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ आएगा। अगर मेरे पास 100 होते तो मैं 2 डिजिट पीछे जाता, यहाँ से 2 के बाद। अगर मेरे पास 1000 होते तो मेरा पॉइंट 3 डिजिट के बाद पीछे चला जाता, 1 2 एंड 3 यहाँ आ जाता, तो मेरा पॉइंट रहता यहाँ पर और उसके बाद रहता 0। ओके, सो सेम थिंग आई विल अप्लाई हियर इफ आई हैव अ 10 मल्टीप्लाइड विथ 0.6666। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रिमूव पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट। मैं एक ही डिजिट के बाद अपना पॉइंट रिप्लेस कर दूंगा। तो मेरा आंसर बन गया 10x इज इक्वल टू 6.66666। ओके, नाउ देयरफॉर 10x is equal to 6.666. okay, I am writing this number in a two way. Suppose two way, when I say two way, that means क्या मैं 6.6 को 6.666 को 6 प्लस 0.666 लिख सकता हूँ? Yes or not? Let me do the addition. Suppose here is a 6 plus 0.6666. okay, so 6 0 plus 6 0 plus 6 0 plus 6 and 6 plus 0 6. so our addition is 6.66666. okay, so I can write 6.666 in the is equal to 6 plus 0.66. it is the same thing when I write 8 is equal to 4 plus 4. I can write 8 is equal to 5 plus 3, मैं 5 plus 3 भी ले सकता हूँ, मैं 8 को 6 plus 2 भी लिख सकता हूँ, मैं 8 को 7 plus 1 भी लिख सकता हूँ। इसी तरह मैं 6.666 है तो मैं उसको 6 plus 0.666 लिख सकता हूँ। ओके, तो what I will do, I will distribute this number in a two term, 6 plus 0.666 and so on. okay, now therefore 10x is equal to 6, I am writing 6 as it is plus as it is and 0.6666. हमने 0.66 को क्या एज्यूम किया हुआ है? x। ध्यान से देखिए, मेरा यहाँ पर आंसर है 0.6666 और मैंने 0.6 को क्या एज्यूम किया हुआ है? x। तो इन द प्लेस ऑफ 0.666 कैन आई राइट x? यस और नॉट? मैं 0.66 है उसकी जगह पर मैं x लिख सकता हूं या नहीं? हाँ, क्योंकि मैंने x को क्या एज्यूम किया हुआ है? 0.6 बार, तो यही है 0.6 बार, क्योंकि 6 बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, तो ये 6 बार की जगह मैं क्या लिख दूंगा? x। नाउ 10x, आई एम राइटिंग 10x एज इट इज। हियर यू कैन सी x इज प्लस। ओके, मैं x को, अभी आप ध्यान से देखना, दिस इज अ वेरी मेन थिंग टू अंडरस्टैंड। आप ध्यान से देखोगे कि x जो है वो इक्वल टू के राइट साइड में। ओके, मैं x को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा, तो क्या हो जाएगा? x जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। कैसे? देखिए, यहाँ पर मेरा x है, मैंने क्या क्या लिखा, मैंने कौन से टर्म्स एज इट इज लिखे, ध्यान से देखिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये समझ नहीं आ जाएगा तो पूरा आपने जो एग्जाम्पल के लिए इतनी एफर्ट लगाए वो आपका काम में नहीं आएगा। तो देखिए, ध्यान से देखिए, 10x, I have written 10x as it is, I have written x is equal to as it is, I have written 6 as it is, but what I have not written, मैंने क्या नहीं लिखा? मैंने x प्लस नहीं लिखा। क्यों? देखिए, x जो है अभी प्लस है उसको मैं, और x जो है प्लस है एज वेल एज इट इज ऑन द राइट साइड टू द इक्वल टू, इज इक्वल टू के वो राइट साइड में, उसको मैं उठा के मैं लेफ्ट साइड में ले लूंगा, तो जो प्लस है वो क्या बन जाएगा? minus. It is very important role to remember always. Whenever you have a plus sign and you take this number on the left side, your plus sign would become minus, and if your sign is minus and if you take this number on the left side, your sign would become plus. अगर plus है तो minus बन जाएगा, minus है तो plus बन जाएगा। Whenever you take your number from right to left and left to right, वेरी सिंपल, और बार बार इसी तरह के सम रिपीट हो गए तो आपको इजीली याद रह जाएगा। मैं अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग वन मोर टाइम। हियर इट वाज x, I have just replaced from right side to left side, so it become plus x to minus x. Okay, so now it is very easy. 10x minus x, अगर हमारे पास 10x है उसमें से 1x माइनस हो जाएंगे तो हमारे कितने x बचेंगे?
9x, yes or not, because x is also here is it is 1x and here is 10x. अगर 10x में से 1x निकल जाएगा तो हमारे पास कितने x बचेंगे, 9x. and I am writing 6 as it is, मैं 6 को वैसे के वैसे लिख रहा हूँ. now the most important thing to understand is again I am saying same thing. मैंने क्या किया, मैंने x को as it is लिखा, मैंने 6 को भी as it is लिखा, मैंने is equal to भी as it is लिखा, मैंने क्या नहीं लिखा यहाँ पर, 9 नहीं लिखा. देखिए क्या होगा, 9 is the number 9 is associated with the number x with the relation of multiplication. यहाँ पर जो 9 नंबर है वो x के मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन से जुड़ा हुआ है. so whenever I remove any number that is being associated with the number 9, अगर उसको मैं नीचे ले लेता हूं तो वो नंबर बन जाएगा मेरा, वो नंबर चला जाएगा मेरा डिवीजन में. ओके, तो हमारा ये नंबर है अभी p डिवाइड बाय q के फॉर्म में आ गया. x इज इक्वल टू 6/9, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइड बाय q. हमें क्या करना था, हमें 0.6 को p डिवाइड बाय q के फॉर्म में लिखना था. तो हमारा आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 6/9. तो हमारा ये नंबर 6/9 जो हमारा p/q फॉर्म दर्शाता है, शो करता है. p/q फॉर्म दर्शाता है मीन्स इट हैव अ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. सो whenever you have an example like that कि so number which is in the form of bar 0.6 बार हो, अगर आपको उसको p फॉर्म q के में रिप्रेजेंट करता है तो what will do, whatever number is giving to you, you will assume that number is equal to x. आपको उसको x से assume कर लेना है. उसके बाद यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. with whatever number I multiply the left term I will multiply with the same number to the right term. मैं लेफ्ट और टर्म को सेम ही नंबर से डिवाइड करूंगा. मैंने डिवाइड 10 से कर दिया. 10 मल्टीप्लाई x इट बिकम 10x. 10 मल्टीप्लाई 0.666 इट बिकम 6.0666. फिर मैंने 6.66 को है उसको मैंने दो टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. 6.666 बिकम 6 प्लस 0.66. नाउ 0.66 जो मेरा 0.66 है उसको मैंने क्या एज्यूम किया हुआ था, उसको मैंने x एज्यूम किया हुआ था. तो मैंने वही x नीचे लिख दिया. फिर मैंने x को लेफ्ट साइड में ले लिया तो वो 10 माइनस x 9x बन गया. 6 आई हैव रिटन एज इट इज. यहाँ पर वो मल्टीप्लीकेशन में था तो राइट मल्टीप्लीकेशन में था तो इज इक्वल टू के अगर राइट साइड में चला जाए तो डिवीजन में आ जाएगा. तो ये यहाँ पर क्या था, वो प्लस में था तो माइनस में चला जाएगा और माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा. अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवीजन में चला जाएगा और डिवीजन में है तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. ये आपको चीज याद रखनी. तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा कि 0.6 बार इज कैन बी शो इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइड बाय q इज 6 डिवाइड बाय 9. आपको इतना ही सम लिखना है. आप नोट डाउन कर लो इस सम को. ओके, एंड देन आफ्टर आई विल गो टू ऑन टू द नेक्स्ट सम. ओके, जस्ट राइट डाउन. ओके स्टूडेंट्स, योर एक्सरसाइज फॉर टुडे, एक्सरसाइज 1.2. आपको खाली दो ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोकेट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन. हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कैसे रूट नंबर को हम नंबर लाइन पे शो करते हैं. आपको इजीली आई एम श्योर कि आप कर पाएंगे. अगर नहीं कर पाएंगे तो ठीक है, फिर से उसको सीख लेंगे. सेकंड क्वेश्चन है, शो 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइड बाय q. यू विल फॉलो, आई हैव गिवन सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल दैट आई हैव सॉल्व हियर. यहाँ पर जो मैंने सॉल्व किया है 0.6 बार, सेम टाइप ऑफ एग्जांपल आई एम गिविंग हियर 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइड बाय q. आप क्या करोगे, द सेम सिस्टम यू विल फॉलो एज आई हैव सॉल्व इन दिस एग्जांपल. आपको वही सिस्टम फॉलो करनी है जो मैंने यहाँ कर दी. फिर भी अगर कोई डिफिकल्टी है वी विल लर्न इन द नेक्स्ट टाइम. ओके, थैंक यू.